स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello and welcome to Study IQ IAS. In this lecture, we are going to discuss our second unit, that is rationalism according to UPSC philosophy optional syllabus. This is going to be the second lecture of Western philosophy. The series I am going to complete, which is of Western philosophy. In that series, this is going to be the second lecture in which we are going to discuss rationalism of Descartes, Spinoza and Leibniz, which are three philosophers in our UPSC syllabus. So we will discuss one by one. So in this class, we will discuss all the topics that are given in the UPSC syllabus of Descartes, Spinoza and Leibniz. Let us see what are the topics. So we have these topics. The syllabus says that we have Cartesian method, which is given by Descartes, and then we will understand substance, God, mind-body dualism, and then determinism and freedom. So before going to these topics, we have to understand what is rationalism itself. अपने आप में rationalism क्या है? When we talk about rationalism in Hindi, it is called बुद्धिवाद. Why it is called बुद्धिवाद? What is the relation of buddhi with this philosophy, of intuition of this with this philosophy, of reason with this philosophy? In this philosophy, in this school of thought, in this doctrine, the reason is sole responsible for acquisition of knowledge. When we acquire knowledge, when we get knowledge, when we learn something, we have to use our intuition or reason. Reason is the only source of knowledge. It is said by rationalism. This is why this school is called rationalism. And these philosophers are called rationalist philosophers, that are Descartes, Spinoza and Leibniz. And these are the topics that are given in our UPSC syllabus, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं. So let us start with the first topic, that is Cartesian method. तो अगर हम बात करते हैं Cartesian method की, this is known as doubt method और hyperbolic doubt method. Why it is called hyperbolic? क्योंकि ये क्या करता है, ये सारी चीजों को रिड्यूस कर देता है डाउट में. ये कहता है जो भी आपके प्रीवियस बिलीफ्स हैं, जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं, सभी के ऊपर आपको डाउट करना है. आप डाउट करें, एक सिस्टमैटिक तरीके से डाउट करें, और डाउट करने के बाद में आप उनको वेरीफाई करें. सिस्टमैटिक तरीके से आप उनको वेरीफाई करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि जो भी आप जानते हैं वो सही है या फिर नहीं है. बट ही डज नॉट डाउट ऑन इटसेल्फ और ऑन हिमसेल्फ और गॉड. लेकिन वो अपने आप पे और गॉड के ऊपर डाउट नहीं करता. अपने आप के ऊपर इसलिए नहीं करता डाउट, वो ये कहता है कि मैं अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर डाउट अगर करता हूं तो मैं गलत करूंगा, मैं कर ही नहीं सकता. उसका रीजन ये है कि आई एम द डाउटिंग पर्सन. इफ आई एम डाउटिंग विच प्री सपोजेस माई एग्जिस्टेंस. अगर मैं डाउट करता हूं, इसका मतलब यह है कि कोई डाउट करने वाला है, और वो डाउट करने वाला कौन है? मैं हूं. विच मीन्स माई एग्जिस्टेंस इज देयर. I think therefore I am. Cogito ergo sum, उसका फेमस डायलॉग है. Cogito ergo sum, which means I think therefore I am. मैं हूं क्योंकि मैं सोच पाता हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं. मेरा एग्जिस्टेंस है क्योंकि मैं सोचता हूं, और जो डाउटिंग है वो थिंकिंग में ही आता है. दैट इज अ फैकल्टी ऑफ रीजन ओनली. रीजन करते हैं, सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, तभी तो हम डाउट करते हैं. और जब हम डाउट करते हैं, इसका मतलब यह है डाउट करने वाला कोई है, डाउट करने वाला एग्जिस्ट करता है. विच मीन्स माई एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी डाउटेड, बट आई कैन डाउट एवरीथिंग. I can doubt your existence. I can doubt the existence of everything in this world. I can doubt all the beliefs and principles which are in my mind. तो वो ये कहता है कि मैं अपने आप के ऊपर डाउट नहीं कर सकता और अपने गॉड के ऊपर डाउट नहीं कर सकता. गॉड के ऊपर डाउट क्यों नहीं कर सकता? सॉरी. वो ये कहता है कि गॉड के बारे में तो स्क्रिप्चर्स में भी बताया गया है. गॉड का एक इनेट आइडिया मेरे माइंड में है, वो विश्वास करता है इनेट आइडियाज में. वो ये कहता है कि जब हम पैदा होते हैं, कुछ इनेट आइडियाज को लेके हम पैदा होते हैं, जिसका इन्फ्लुएंस हमेशा हमारे नॉलेज के ऊपर रहता है, हमारी लाइफ के ऊपर रहता है. मैं अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर डाउट नहीं करता क्योंकि आई एम सेल्फ प्रूव्ड. मैं गॉड के ऊपर इसलिए डाउट नहीं करता क्योंकि जो गॉड का एग्जिस्टेंस है वो मेरे स्क्रिप्चर से प्रूव हो जाता है. स्क्रिप्चर्स ऐसा कहते हैं कि गॉड है, इसलिए मैं स्क्रिप्चर्स के ऊपर विश्वास करता हूं, और मुझे लगता है, मेरा मानना है कि गॉड है, इसलिए मैं गॉड के ऊपर कोई भी डाउट नहीं करता. पहला रीजन. दूसरा रीजन ये रहता है कि आई एम अ फाइनाइट बीइंग.
मेरा रीजन जो है वो फाइनाइट है, मैं कुछ चीजों को देख पाता हूं, सारी चीजों को नहीं देख पाता, सारी चीजों को मैं नहीं समझता, सारी चीजों के जो आइडियाज हैं वो मेरे माइंड में नहीं है। लेकिन कोई तो ऐसा है इंटेलिजेंट बीइंग who is infinite, who has infinite intelligence, who has infinite reason. Who is that? He is a perfect being. वो परफेक्ट बीइंग कौन है? वो परफेक्ट बीइंग गॉड है, एंड दिस इज कॉल्ड हिज ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अब क्योंकि परफेक्शन एग्जिस्ट करता है तो कोई परफेक्ट बीइंग परफेक्ट तभी हो सकता है जब वो मेरे माइंड में भी होगा और वो रियलिटी में भी होगा। सिर्फ मेरे माइंड में होने से वो परफेक्ट तो नहीं होता, परफेक्ट वो तभी होगा जब वो रियलिटी में भी होता है, विच मीन्स गॉड एग्जिस्ट, विच मीन्स आई कैन नॉट डाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो इस तरीके से वो ये कहता है कि आई कैन डाउट एवरीथिंग बट आई कैन नॉट डाउट माई एग्जिस्टेंस एंड गॉड्स एग्जिस्टेंस। ईश्वर के और अपने अस्तित्व के ऊपर मैं कोई भी सवाल नहीं उठा सकता, बट आई कैन डाउट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। आपके एग्जिस्टेंस और जितनी भी दुनिया में चीजें हैं वो सारी चीजों के ऊपर मैं डाउट कर सकता हूं। दिस इज नोन एज हाइपरबोलिक डाउट मेथड ऑफ डेकार्ट्स, विच इज ऑल्सो नोन एज कार्टेशियन मेथड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्सटेंस की। नाउ वी हैव टू डिस्कस द सब्सटेंस ऑफ रेशनलिज्म। अगर हम रेशनलिज्म में सब्सटेंस की बात करेंगे तो जो हमारे तीन रेशनलिस्ट फिलोसोफर्स हैं, पहला फिलोसोफर है डेकार्ट्स, दूसरा स्पिनोजा, तीसरा लिबनिज है। तो हम तीनों के सब्सटेंस की एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द सब्सटेंस ऑफ Descartes. According to Descartes, the substance is the ultimate reality that is self-subsistent and self-dependent, that is not dependent on any other thing. All the other things are dependent on that very reality which is known as ultimate reality and substance, and that is God only. वो सिर्फ God है, but the things that are directly dependent on God, that are also counted to be as substance, which are two, that is mind and body, जो कि माइंड और बॉडी है। तो वो ये कहता है कि माइंड और बॉडी अपने एग्जिस्टेंस के लिए ईश्वर के ऊपर आश्रित रहती हैं, गॉड के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है, इसलिए वो माइंड और बॉडी को भी सब्सटेंस की श्रेणी में रखता है, सब्सटेंस के जो क्लास है उसमें रखता है, यानी कि माइंड और बॉडी को भी वो सब्सटेंस मानता है। अब क्योंकि इसकी जो रियलिटी है वो कितनी है? दो हैं, माइंड एंड बॉडी। दिस इज व्हाई हिज फिलॉसफी इज कॉल्ड डुअलिस्टिक फिलॉसफी, व्हिच मींस इट इज डुअलिस्टिक फिलॉसफी। डुअलिज्म में विश्वास करता है, द्वैतवादी है ये, ठीक है। और उसमें दो चीजें क्या है? एक माइंड है और बॉडी है। और वो ये कहता है कि माइंड का काम है थिंकिंग और बॉडी का काम है एक्सटेंशन। ये दोनों उसके एट्रीब्यूट्स रहते हैं। माइंड सोचता है और बॉडी जो है वो क्या करती है? एक्सटेंड करती है टाइम और स्पेस में। अब क्योंकि दोनों जो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं, तो दोनों आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं? तो वो ये कहता है कि हमारे ब्रेन में एक पिनियल ग्लैंड होती है जिसके थ्रू माइंड एंड बॉडी दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, विच इज नोन एज इंटरेक्शनिज्म। माइंड बॉडी को इंस्ट्रक्ट करता है, बॉडी माइंड को इंस्ट्रक्ट करती है, दोनों एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन करते हैं, विच इज नोन एज इंटरेक्शनिज्म। अगर हम बात करते हैं स्पिनोजा की, तो स्पिनोजा का जो सब्सटेंस है दैट इज ऑल्सो गॉड, लेकिन वो यहाँ पर माइंड और बॉडी को सब्सटेंस में काउंट नहीं करता। माइंड की जगह पे वो बोलता है थॉट और बॉडी की, सॉरी माइंड की जगह पे बोलता है, हाँ, थॉट और बॉडी को बोलता है वो एक्सटेंशन, जो कि माइंड और बॉडी थे डेकार्ट्स की फिलॉसफी में, स्पिनोजा के लिए वो थॉट और एक्सटेंशन है। लेकिन वो जो थॉट और एक्सटेंशन है ना, वो ये नहीं कहता कि ये दोनों जो हैं ये सब्सटेंस यानी कि अल्टीमेट रियलिटी है। वो ये कहता है ये दोनों एट्रीब्यूट्स हैं किसके? गॉड के, विच इज अल्टीमेट रियलिटी एंड विच इज गॉड एंड विच इज सब्सटेंस। अब सब्सटेंस है, अल्टीमेट रियलिटी है, तो वो ये कहता है कि जो गॉड है दैट इज नेचर इटसेल्फ, नेचर इज गॉड एंड गॉड इज नेचर। यानी कि यहाँ पे जो कुछ भी आपको दिखाई देता है एवरीथिंग इज गॉड। वो कहता है एवरीथिंग इज गॉड एंड गॉड इज एवरीथिंग, विच इज व्हाई दिस व्यू इज कॉल्ड पैंथीज्म। और जो स्पिनोजा है वो एक पैंथीस्ट है, जिसको हिंदी में सर्वेश्वरवाद कहते हैं, कि हर चीज में ईश्वर है और ईश्वर हर चीज में है, विच मीन्स द God is not the creator being which is separate from the creation, but it is creation itself. क्रिएशन से वो अलग नहीं है। गॉड ने इस क्रिएशन को बनाया नहीं है, इस पृथ्वी को, इस धरती को, इस जगत को, इस सृष्टि को बनाया नहीं है, नेचर को नहीं बनाया, बल्कि गॉड अपने आप में नेचर है और सारी चीजें गॉड में ही रहती हैं और गॉड हर चीज में रहता है, विच इज नोन एज पैंथीज्म। आगे अगर हम बात करते हैं लिबनिज के, तो लिबनिज ये कहता है कि जो गॉड का जो कॉन्सेप्ट है, इसको सब्सटेंस बोलते हैं स्पिनोजा और डेकार्ट्स,
उसके जो दो एट्रीब्यूट्स बताए जाते हैं, माइंड बॉडी या फिर थॉट और एक्सटेंशन, ये जो हैं ये दोनों ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो आपस में बिल्कुल भी अपोजिट हैं, बिल्कुल अपोजिट हैं। तो दोनों आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं? तो स्पिनोजा इसका आंसर देता है कि दोनों आपस में इंटरैक्ट नहीं करते, दोनों बल्कि पैरेलल चलते हैं। स्पिनोजा कहता है कि जो थॉट और एक्सटेंशन है वो दोनों गॉड के एट्रीब्यूट्स हैं और दोनों पैरेलल चलते हैं, इसी को वो पैरेललिज्म बोलता है, इसको वो बोलता है पैरेललिज्म। अब लिबनिज इस बात से सेटिस्फाइड नहीं है। लिबनिज कहता है कि दो अपोजिट एट्रीब्यूट्स आपस में कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं या फिर कैसे पैरेलल चल सकते हैं। इसका मतलब यह है रियलिटी इज नॉट टू फोल्ड, इट इज वन फोल्ड ओनली। इसीलिए जो लिबनिज है वो मोनिस्ट है, which means for him the reality is one only, that is monads। अब वो मोनाड्स का कॉन्सेप्ट लेके आता है। वो ये कहता है कि इस जगत में जो कुछ भी है, चाहे फिजिकल है, नॉन फिजिकल है, मेंटल है या फिर मैटर है, सब कुछ क्या है? मोनाड से मिलके बना है, मोनाड से मिलके बना है। अब क्योंकि अब रियलिटी तो एक ही है, मोनाड्स। वो ये कहता है कि जो गॉड है वो भी मोनाड है, इंसान जो है वो भी मोनाड है, पशु पक्षी है मोनाड है, और जो पेड़ पौधे हैं मोनाड हैं, जो भी नॉन फिजिकल चीजें हैं वो भी मोनाड है, जो फिजिकल चीजें हैं सभी मोनाड हैं। अब उससे ये पूछा जाए कुछ चीजें कॉन्शियस होती हैं, कुछ चीजें कॉन्शियस नहीं होती हैं, तो दोनों चीजें मोनाड कैसे हो सकती हैं? तो वो ये कहता है कि सभी मोनाड ही होते हैं, और मोनाड्स जो होते हैं वो सेल्फ एक्टिव स्पिरिचुअल एटम्स होते हैं, फिजिकल एटम्स नहीं होते, स्पिरिचुअल एटम्स होते हैं। और वो ये कहता है कि सभी में एक्टिविटी पाई जाती है, लेकिन किसी में एक्टिविटी बहुत कम होती है, विच इज नोन एज बेयर मोनाड्स और स्लीपिंग मोनाड्स। लेकिन किसी की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, विच इज क्वीन मोनाड, जैसे कि गॉड। तो वो कहता है कि जो चीजें स्लीपिंग मोनाड से बनती हैं वो हमें स्टिल दिखाई देती हैं, क्योंकि उसमें हमें एक्टिविटी दिखाई नहीं देती। जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर जो है ये बेयर मोनाड से बना है, जिसमें एक्टिविटी बहुत कम है, इसकी वजह से ये हमें स्टिल दिखाई देता है, स्थिर दिखाई देता है। जबकि अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मैं ऐसे मोनाड से बनाऊं जो कि एक्टिव हैं, जिसकी वजह से मेरे अंदर आपको एक्टिविटी दिखाई देती है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी एक्टिव नहीं है, हर जगह एक्टिविटी है, हर मोनाड में एक्टिविटी है, किसी में एक्टिविटी कम है, किसी में एक्टिविटी ज्यादा है। इसकी वजह से हमें चीजें कॉन्शियस और नॉन कॉन्शियस, लिविंग और नॉन लिविंग के फॉर्म में दिखाई देती हैं। अब वो ये कहता है कि ये जो गॉड है मोनाड, वो क्वीन मोनाड होता है, जो कि हाइपर एक्टिव होता है, जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिविटी पाई जाती है, जो सारे मोनाड्स को बनाता है। ही इज द क्रिएटर बीइंग विच इज नोन एज गॉड और क्वीन मोनाड। और बाकी सारे जो मोनाड्स हैं वो भी इसी श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं, इसी प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं कि एक टाइम पे उनको भी गॉड मोनाड बनना है, यानी कि उनको भी सुपर एक्टिविटी पानी है ताकि वो भी गॉड मोनाड बन जाए, क्वीन मोनाड बन जाए। अब उसके लिए ये भी कहता है कि जो डेकार्ट्स का जो इंटरैक्शनिज्म था माइंड और बॉडी के फॉर्म में, वो भी सेटिस्फैक्टरी नहीं था, और जो स्पिनोजा का पैरेललिज्म है थॉट और एक्सटेंशन का, वो भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। अगर कुछ सेटिस्फैक्टरी है विच इज प्री एस्टैब्लिश हार्मनी, जब गॉड मोनाड यानी कि क्वीन मोनाड बाकी मोनाड्स को बनाता है तो उनको बनाते टाइम एक पहले से ही एक हार्मनी सेट कर देता है, एक हार्मनी सेट कर देता है। हार्मनी कोई सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जैसे फेट होता है ना, हम इंसान हैं, हम क्या बात करते हैं कि हमारे तो भाग्य में ये लिखा है, जो भाग्य है, भाग्य में जो कुछ भी लिख दिया गया है वो होना है, यानी कि हमारा जो फेट है, हमारी जो नियति है, हमारा जो फॉर्च्यून है, उसमें जो लिखा है वो होगा। तो वो जो फॉर्च्यून है वो कौन तय करता है? वो गॉड मोनाड तय करता है, विच इज नोन एज प्री एस्टैब्लिश हार्मनी, जो हमें बनाते टाइम पहले ही डाल दी जाती है। इस तरीके से तीनों फिलोसोफर्स अपने अपने सब्सटेंस को डिफाइन करते हैं। आगे बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज गॉड। अगर हम बात करते हैं गॉड की, डेकार्ट्स का गॉड क्या है, स्पिनोजा का गॉड क्या है और लिबनिज का गॉड क्या है। डेकार्ट्स का जो गॉड है दैट इज सब्सटेंस, जिसके दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसके ऊपर दो डिपेंडेंट सब्सटेंस होते हैं, जो कि एक माइंड है और दूसरा बॉडी है। दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं, विच इज नोन एज इंटरैक्शनिज्म। अगर स्पिनोजा की बात करते हैं तो स्पिनोजा ये कहता है कि जो गॉड है दैट इज अल्टीमेट रियलिटी, विच इज नेचर इटसेल्फ, जो नेचर से अलग नहीं है, एंड दैट इज नॉट द क्रिएटर बीइंग बट इट इज क्रिएशन इटसेल्फ। वो क्रिएटर नहीं है बल्कि वो क्रिएशन ही है, यानी कि जो क्रिएशन है, जो क्रिएटर है, वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। यानी कि एवरीथिंग इज गॉड एंड गॉड इज एवरीथिंग, विच इज नोन एज पैंथीज्म। इस तरीके से वो सर्वेश्वरवाद को यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। ये उसका इम्पर्सनलिस्टिक नोशन ऑफ गॉड है, जो कि उसका गॉड जो है वो कैसा है, इम्पर्सनल है। आगे अगर हम बात करते हैं लिबनिज की, तो लिबनिज का जो कॉन्सेप्शन ऑफ गॉड है वो ये कहता है कि जब मोनाड्स की मैं बात करता हूँ जो कि अल्टीमेट रियल है, अल्टीमेट रियलिटी है, विच इज गॉड ओनली एंड विच इज क्वीन मोनाड, विच इज क्वीन मोनाड, जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिविटी पाई जाती है, जो कि बाकी सारे मोनाड्स को बनाता है और उनमें प्री एस्टैब्लिश हार्मनी को स्टैब्लिश करता है। क्लियर? नेक्स्ट,
आगे हम बात करते हैं इनके माइंड बॉडी डुअलिज्म की। अगर हम बात करते हैं डेकार्ट्स की, तो डेकार्ट्स जो माइंड और बॉडी दोनों को रियल मानता है। वो ये कहता है कि जो माइंड है और बॉडी है दोनों ही सब्सटेंस है, क्योंकि दोनों ही गॉड के ऊपर डिपेंडेंट है। गॉड इज द ओनली सब्सटेंस, और गॉड के ऊपर जो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं उनको भी वो सब्सटेंस में रखता है, जैसे कि माइंड और बॉडी। तो माइंड और बॉडी दोनों क्या हुए उसके लिए? सब्सटेंस हुए। माइंड और बॉडी दोनों उसके लिए सब्सटेंस है। माइंड कैसा है? माइंड का काम है थिंकिंग, जबकि बॉडी का काम है एक्सटेंशन, यानी कि वो एक्सटेंड करती है टाइम और स्पेस में। एक्सटेंड करने का मतलब ये है कि वो समय भी घेरती है और वो जगह भी घेरती है। जैसे कि मेरा बॉडी, आपका बॉडी, और जो भी फिजिकल चीजें हैं वो सारी चीजें उसके बॉडी में आती हैं। जो भी मटेरियल थिंग्स हैं वो सारे बॉडी में आती हैं। अगर स्पिनोजा की बात करते हैं तो स्पिनोजा ये कहता है कि जो कुछ भी यहाँ आपको दिखता है वो सब कुछ गॉड है, और गॉड के दो एट्रीब्यूट्स के थ्रू हम गॉड को समझ सकते हैं। और वो जो दो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो थॉट और एक्सटेंशन होते हैं। थॉट का मतलब है जितनी भी चीजें हम सोचते हैं, विल करते हैं, हम इच्छा रखते हैं, हम अवर्जन करते हैं, इग्नोरेंस होती है हमारे पास, ठीक है। हम जितने भी मेंटल एक्ट्स करते हैं वो सारे हमारे थॉट में आते हैं। एक्सटेंशन का मतलब होता है जब हम चीजों को एक्सटेंड होते हुए देखते हैं, जो मैटर है उसको हम एक्सटेंड होते हुए देखते हैं। एक्सटेंड होने का मतलब ये है कि वो टाइम और स्पेस को घेरते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये मार्कर है, इसका मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे है और किसी पर्टिकुलर टाइम में है। कहाँ है और कब है, ये क्वेश्चन अपने आप राइज होता है। इसका आंसर देता है टाइम और स्पेस, यानी कि ये पर्टिकुलर टाइम में ये 4:36 पे स्टडी IQ IAS के स्टूडियो नंबर 84 में है। तो ये क्या हुआ? ये जो स्टूडियो नंबर 84 है ये क्या हुआ? इसका स्पेस हुआ, और जो टाइम है 4:36, और डेट क्या है? 24/11/2023। इसमें ये क्या है? ये इसका टाइम है। यानी कि यहाँ पे जितनी भी फिजिकल चीजें हैं उन सारी चीजों में एक्सटेंशन पाया जाता है। एक्सटेंशन का मतलब ये है कि टाइम और प्लेस में वो रहती हैं, समय और स्थान को वो घेरती हैं। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं मोनार्ड्स की, यानी कि लिबनिज की बात करते हैं। लिबनिज माइंड और बॉडी के बारे में क्या कहता है? लिबनिज कहता है कि माइंड और बॉडी दो अलग अलग चीजें नहीं होती। जो कुछ भी होता है एक सिंगल स्पिरिचुअल एटम्स होते हैं, एंड दैट आर कॉल्ड मोनाड्स। इसीलिए इसको हम मोनिस्ट कहते हैं। ये डुअलिज्म में विश्वास नहीं करता, ये माइंड बॉडी की बात नहीं करता, ये थॉट और एक्सटेंशन की बात नहीं करता, ये बात करता है सिर्फ मोनाड्स की, जो कि स्पिरिचुअल एटम्स होते हैं जो सारी रियलिटी को फॉर्म करते हैं। और वो ये कहता है जो क्वीन मोनाड है वो सारी चीजों को बनाता है। तो यहाँ पे माइंड और बॉडी की जो प्रॉब्लम है वो अराइज ही नहीं होती है। अगर सारे मोनाड्स के बीच में इंटरेक्शन की जरूरत है तो वो होता है प्री एस्टैब्लिश हार्मनी के थ्रू, जो कि उनको बनाने के टाइम पे ही उनमें पहले से ही डाल दी जाती है, जो कि ये काम करता है गॉड उनको बनाने के टाइम पे। सो दिस इज नॉन एज माइंड बॉडी डुअलिज्म। आगे अगर हम बात करते हैं डिटर्मिनिज्म एंड फ्रीडम की, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज डिटर्मिनिज्म एंड फ्रीडम। तो अगर हम बात करते हैं रेशनलिज्म के, डिटर्मिनिज्म और फ्रीडम की, तो जो डेकार्ट्स है वो ये कहता है कि हमारा जो माइंड है उसके पास फ्रीडम होती है। माइंड हमारा जो चाहे वो सोच सकता है, कर सकता है, विल कर सकता है, लव कर सकता है, हेट कर सकता है, विल कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, उसके पास फ्रीडम है। लेकिन हमारा जो बॉडी है वो नेचुरल लॉज से बंधा हुआ है। इट हैज सम नेचुरल लॉज, इट इज लिमिटेड विद नेचुरल लॉज। इसके ऊपर नेचुरल लॉज अप्लाई होते हैं, यानी कि जो नेचर है उसके लॉज इसके ऊपर अप्लाई होते हैं, नेचर के अकॉर्डिंग ये चलता है। लेकिन हमारा जो माइंड है दैट इज एब्सोल्युटली फ्री, वी हैव फ्रीडम। अगर हम बात करते हैं स्पिनोजा की, तो स्पिनोजा फ्रीडम और डिटर्मिनिज्म के लिए क्या कहता है? स्पिनोजा जो है वो एक पैंथीस्ट है। वो ये कहता है कि हम सभी के पास जो फ्रीडम है वो गॉड ने दी है। फ्रीडम जो है वो गॉड ने दी है, लेकिन गॉड ने हमारी जो फ्रीडम है उसको अपने आप से, अपने हिसाब से दिया है, अपने हिसाब से दिया है। यानी कि उसने हमें फ्रीडम तो दी है, लेकिन हम क्या करेंगे ये उसको पहले से पता है, ये उसने पहले से ही डिटरमिन कर रखा है। लेकिन फिर भी हमारे पास एक सेंस ऑफ फ्रीडम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पानी में मछली होती है, मछली को ये लगता है कि मेरे पास फ्रीडम है, मैं जहां चाहे वहां तैर सकती हूँ, लेकिन उसके पास भी एक लिमिट है, और वो लिमिट है उसका वाटर, उसकी नदी, जिस नदी में वो है। इसका मतलब क्या है? उसको ऐसा लगता है कि उसके पास फ्रीडम है, लेकिन उसकी जो फ्रीडम है वो लिमिटेड है, और ये जो लिमिट है कि वो वाटर में ही रह सकती है, ये लिमिट दी है उसको गॉड ने। तो जो फ्रीडम है उसको ये लगता है कि
वो जहां चाहे वहां तैर सकती है, नदी में इधर उधर तैर सकती है आराम से फ्रीडम के साथ में, ये उसकी फ्रीडम है। लेकिन वो पानी में ही तैर सकती है, पानी में ही जीवित रह सकती है। ये क्या है? ये डिटर्मिनिज्म है जो कि गॉड ने उसको दिया है। अब अगर हम बात करते हैं लिबनिज की, तो लिबनिज कहता है कि जब गॉड ने, यानी कि जो सुप्रीम मोनार्ड है, यानी कि क्वीन मोनार्ड है, जब वो बाकी मोनार्ड्स को बनाता है तो उनमें एक प्री एस्टैब्लिश हार्मनी को डाल देता है। जब वो उसमें प्री एस्टैब्लिश हार्मनी को डालता है, इसका मतलब यह है कि उनकी जो फ्रीडम है वो पहले से ही वो डिटरमिन कर देता है कि भाई आपको इतनी फ्रीडम मिलने वाली है। वही मछली वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। वो ये कहता है कि हमारी जो फ्रीडम है वो दैट इज प्री डिटर्मिन्ड, पहले से ही डिटरमिन होता है कि हमें कितनी फ्रीडम मिलने वाली है। हमें भले ही लगता है कि हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं, लेकिन वो ऑप्शंस भी तो लिमिटेड है ना। अगर हमारे पास 100 ऑप्शंस हैं तो वो 100 ऑप्शंस भी हमें गॉड ने दिए हैं, जिसने हमें बनाया है। दैट इज क्वीन मोनार्ड एट द टाइम ऑफ fostering pre-established harmony in our nature while creating us, जब वो हमें बना रहा था। So this is known as the concept of determinism and freedom and rationalism। ठीक है, चलिए। So this is all about rationalism. Now we will discuss the previous year questions, that is very important aspect of this lecture video। तो इसमें हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज डिस्कस डेकार्ट्स थ्योरी ऑफ इनेट आइडियाज एंड ग्राउंड्स ऑन व्हिच लॉक रिफ्यूट्स इट। जो डेकार्ट्स है वो ये कहता है कुछ आइडियाज को मैं अपने साथ में लेके पैदा होता हूं, विच आर नोन एज इनेट आइडियाज। अब जो इनेट आइडियाज हैं इसका मतलब ये है कि वो मेरे माइंड में पहले से थे, जैसे कि द आइडिया ऑफ गॉड, द आइडिया ऑफ सेल्फ। ये जो आइडियाज हैं इनको मैं लेके पैदा हुआ था। लेकिन जो लॉक है, जो कि एक एम्पिरिसिस्ट फिलोसोफर है, वो ये कहता है कोई भी आइडिया हम लेके पैदा नहीं होते। हमारा जो माइंड होता है, जब हम पैदा होते हैं तो हमारा माइंड जो है दैट इज तबुला रासा और ब्लैंक स्लेट। हमारा माइंड जो है वो ब्लैंक स्लेट होता है, तबुला रासा होता है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा होता। हम अपने एक्सपीरियंसेस से इस पे अपना जो नॉलेज है उसको लिखते हैं, यानी कि जो कुछ भी है हम यहीं आके समझते हैं, यहीं आके सीखते हैं। इससे पहले हमारे माइंड में कोई भी इनेट आइडियाज का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये 2023 में 15 नंबर का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू स्पिनोजा। डज दिस डिस्कस ऑन सब्सटेंस लीड टू पैंथीज्म? सब्सटेंशिएट योर व्यू। अगर हम बात करते हैं स्पिनोजा के सब्सटेंस की, तो स्पिनोजा के अकॉर्डिंग सब्सटेंस यानी कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है? गॉड है। वो ये कहता है गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड, गॉड इज नेचर एंड नेचर इज गॉड। हर चीज गॉड में है, गॉड हर चीज में है। इस तरीके की अगर वो बात करेगा तो ये तो सर्वेश्वरवाद हो जाएगा ना, ये तो पैंथीज्म हो जाएगा। इस तरीके से जब वो अपने सब्सटेंस को क्लैरिफाई करता है, सब्सटेंस को एक्सप्लेन करता है, विच इज गॉड, जिसके दो एट्रीब्यूट्स हैं, थॉट और एक्सटेंशन, तो वो एक्सप्लेन करने के ऑर्डर में वो धीरे धीरे चला जाता है पैंथीज्म की तरफ। तो इस तरीके से हम देखते हैं उसके जो व्यूज हैं सब्सटेंस के या फिर गॉड के, दैट आर नोन एज पैंथीज्म। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डज लिबनिज कॉन्सेप्शन ऑफ मोनार्ड्स बेयर अपॉन हिज व्यूज ऑन डिटर्मिनिज्म एंड फ्रीडम? डिस्कस विद योर ओन कमेंट। 2020 में 10 नंबर का क्वेश्चन आया था कि जो लिबनिज है वो डिटर्मिनिज्म और फ्रीडम की बात कैसे करता है। लिबनिज जो है डिटर्मिनिज्म और फ्रीडम की बात करता है अपने प्री एस्टैब्लिश हार्मनी के थ्रू। वो ये कहता है कि जब क्वीन यानी कि सुप्रीम मोनार्ड जो है वो हमें बनाता है, बाकी मोनार्ड्स को जब वो बनाता है तो बनाने के टाइम पे उनमें एक हार्मनी को डाल देता है, यानी कि उनका जो फेट है वो पहले से ही डिटरमिन कर देता है कि उनको किससे इंटरेक्ट करना है, कितना इंटरेक्ट करना है और कैसे रहना है। यानी कि हमारे भाग्य का निर्धारण हमारा जो ईश्वर है हमारे बनाने के टाइम पे पहले ही कर देता है। हमें ऐसा लगता है कि हम फ्री हैं, हमारे पास फ्रीडम है, लेकिन जो फ्रीडम है वो पहले से ही डिटरमिन्ड होती है। इट इज बाय गॉड। सो दिस इज ऑल अबाउट रैशनलिज्म। नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहने वाला है दैट विल बी एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म में हमारे जो 3 फिलोसोफर्स हैं, लॉक, बर्कले और ह्यूम, उन तीनों की फिलोसफी क्या है उसको हम समझेंगे, जो कि हमारे वेस्टर्न फिलोसफी का कॉन्सेप्ट है। फिलोसफी ऑप्शनल के जो लाइव क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। 29 नवंबर को हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसकी फीस काफ़ी अफोर्डेबल है अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं SG लाइव, जिसमें आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं, प्लस आपको स्टडी मटेरियल भी मिलता है। टेस्ट सीरीज के जो डिस्कशन है वो भी हमारा लाइव क्लासेस में होता है। हर सैटरडे को हमारा डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। इसी तरीके से टॉपिक के डिस्कशन के बाद में उनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं डिस्कस करता हूं। हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो आपको अमेजोन पे अवेलेबल रहता है, आप वहां से चाहें तो परचेज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।